Hello student, myself Dr. Varsha Jodhwani from CSIT department from Rabindranath Tagore University. Today's our topic is variable scope. Earlier we have studied about the PHP introduction and about the variables and its data types. But now we will study about the scope of variables. So let's start with our PHP variable scope. The scope of a variable is defined as its range in the program under which it can be accessed. Scope वेरिएबल स्कोप की अगर मैं बात करूं तो वो रेंज है हमारे प्रोग्राम को जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली. इसमें तीन टाइप्स हैं, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल. अगर स्कोप की बात की जाती है तो इट इज डिफाइंड into the three categories, that is the local variable, global variable and static variable. So let's come to the local variable. The variables that are declared within a functions are called local variable for that function. These local variables have their scope only in that particular function in which they are declared. This means that these variables cannot be accessed outside the function as they have a local scope. That means these variables will be defined in the function. इसकी जो रेंज रहती है वो फंक्शन के अंदर रहती है, इसलिए इसको कहा जाता है लोकल वेरिएबल. इस लोकल वेरिएबल का स्कोप पर्टिकुलर फंक्शन में ही अंदर डिक्लेयर किया जाता है, उसको हम आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए जो उसकी जो रेंज है वो विद इन दैट फंक्शन होती है. लेट्स कम टू द एग्जांपल. You will get it more clarified with the definition by having this example. So this is a PHP tags. ये हमारे PHP tags हैं. इसमें हमने फंक्शन को डिफाइन किया, दैट इज लोकल अंडरस्कोर var. ये हमारा फंक्शन है. फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं लोकल वेरिएबल का एग्जांपल बता रही हूँ तो आई हैव कीप द वेरिएबल नेम एज फंक्शन नेम एज अ लोकल अंडरस्कोर var. Here within that function I am assigning the value of a variable that is $num is equals to 45. This is defined in this function only. Here I am going to print echo local variable declared inside the function is $num. That means I want that the value or the statement local variable declared inside the function will shown as an output and get the variable value from here. So $num is equals to 45. Automatically the print will we will get the output local variable declared inside the function is $num is 45, that is 45. मतलब इस वैल्यू की जो इसकी जो रेंज है वो मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल में इसके फंक्शन के अंदर मैंने दे दिया है, और उस लोकल वेरिएबल फंक्शन को मैंने इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर मैंने इसको कॉल किया. जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा लोकल वेरिएबल उसको मिलेगा. लोकल वेरिएबल का जो फंक्शन उसको क्या चीज हो रही है वो यहाँ पे उसका जो भी इसका ऑपरेशन हो रहा होगा वो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे हमें दे देगा. मतलब इसकी इस वेरिएबल की जो रेंज है वो इसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है. नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल. द ग्लोबल वेरिएबल आर द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन. These variables can be accessed anywhere in the program. To access the global variable within a function, use a global keyword before the variable. There is no need to use any keyword to access a global variable outside the function. जहां तक ग्लोबल वेरिएबल की बात की जाए तो ग्लोबल वेरिएबल हमारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, और ये वेरिएबल्स प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी एक्सेस किए जा सकते हैं. इन ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो उसको मुझे ग्लोबल कीवर्ड यूज करके मैं उस फंक्शन के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकती हूँ, लेकिन उस टाइम मुझे ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा. लेकिन if I'm outside that function, so there is no any requirement to mention the global keyword over there. So here it is a program. You can be easily get the definition of a global variable from this small program.
Here the PHP tags, which is already predefined by writing the PHP coding. Dollar name is equal to Shanaya Sharma. This is the global variable which is I am declaring outside the function. ये मेरा नेम नाम का मैंने वेरिएबल है सनाया शर्मा, डबल कोट्स में मैंने दे दिया है, और क्योंकि फंक्शन के बाहर है इसलिए ग्लोबल वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा. फंक्शन मेरा ग्लोबल अंडरस्कोर वेर है. ग्लोबल अंडरस्कोर वेर नाम का जो मैंने फंक्शन बनाया, क्योंकि मैं प्रोग्राम ग्लोबल वेरिएबल का बता रही हूँ, तो मैंने फंक्शन का नेम भी मैंने ग्लोबल अंडरस्कोर वेर करके लिख दिया. क्योंकि ये वेरिएबल को मैं विद इन दैट फंक्शन कॉल कर रही हूँ, तो हियर आई एम यूजिंग द कीवर्ड ग्लोबल ओवर हियर एंड डॉलर नेम मैंने लिख दिया. इको वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन और डॉलर नेम लिखा. इको ब्रेक कर दिया. यहाँ पे ब्रेक br दैट इज फॉर द नेक्स्ट लाइन. अब इसी फंक्शन को मैंने, अगर मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो मैंने ग्लोबल अंडरस्कोर वेर को कॉल किया. अब एक और स्टेटमेंट में प्रिंट कराना चाहती हूँ जिसको मैंने लिखा इको वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन और डॉलर डॉट डॉलर नेम लिखा है. इसके आगे अगर देखा जाए तो मैंने ग्लोबल वेरिएबल ये भी है, ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू को फेच कर लेगा. लेकिन अगर मुझे ये वैल्यू प्रिंट करानी है जो कि मेरे फंक्शन के अंदर है, उस फंक्शन के अंदर मैंने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है, लेकिन उसके आगे मैंने ग्लोबल कीवर्ड लिखा. लेकिन यहाँ पे मैंने, अगर मैं सिंपल अगर एक प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल नहीं लिखना पड़ेगा, जिसको मैं डायरेक्टली without using any keyword of global I can access that name. So here it is our output variable inside the function, that is a Shanaya Sharma, and variable outside the function that is a dollar name, that is a Shanaya Sharma. ऐसे करके मेरा जो आउटपुट आएगा, एक बार ग्लोबल वेरिएबल का जो फंक्शन है उसका दिखाएगा वो आउटपुट, और जो मेरा ग्लोबल जो नॉर्मल है, मैं चाहती हूँ कि उसमें मुझे ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करना पड़े, उस पे मैं वो डायरेक्टली वो आउटसाइड से विदाउट यूजिंग एनी ग्लोबल कीवर्ड इट कैन एक्सेस द वैल्यू. नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक वेरिएबल. इट इज अ फीचर ऑफ अ PHP to delete the variable once it is complete its execution and memory is free. Sometimes we need to store a variable even after the completion of a function execution. इसमें क्या होता है कि PHP की क्वालिटी रहती है कि अगर आपका जब वेरिएबल इफ इट इज नॉट इन नो मोर यूज, एट दैट टाइम इट डिलीट द वेरिएबल ऑटोमेटिकली. जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है और वो मेमोरी क्या हो जाती है, इट गेट वो फ्री हो जाती है, द मेमोरी गेट फ्री फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. Sometimes we need to store a variable even after the completion of a function execution. That means after the completion of a task of a function execution, we need that we should save our variable in a memory. So at that time, there is a requirement of a static variable. Static keyword before the variable to define a variable, and this variable is called a static variable. जो कीवर्ड स्टैटिक अगर हम लिख लेते हैं किसी वेरिएबल के आगे, तो वो स्टैटिक वेरिएबल की तरह एक्ट करने लगता है. Static variable exists only in a local function, but it doesn't free its memory after the program execution leaves the scope. Static variable local function में ही exist करता है, लेकिन ये मेमोरी को रिलीज नहीं करता है जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद में. तो ये इसकी स्टैटिक वेरिएबल की इंपॉर्टेंस है. सो लेट्स कम विद आवर एग्जांपल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल प्रोग्राम. Here there is here we can see there is already a PHP tag over there. Function static var करके मैंने ले रखा है. static underscore var नाम का फंक्शन मैंने लिया. static underscore var मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो एग्जांपल है स्टैटिक वेरिएबल प्रोग्राम का है. आप कुछ भी ले सकते हैं. दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं. एक वेरिएबल मैंने ले रही हूँ जिसपे मैं लिख रही हूँ static $num, that is num1 is equals to 3.
this is a static variable because I have declared static keyword before this variable name. Dollar and num2 is equals to 6. Here I am not declaring any keyword static, so it will be act as a non-static variable. I want to increment in a static variable. मैंने increment किया तो मैंने डॉलर एन num1 प्लस प्लस कर दिया. यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे, तो डॉलर num2 प्लस प्लस दोनों पे मैं वेरिएबल पे इंक्रीमेंट कर रही हूँ, दोनों पे मैंने इंक्रीमेंट किया. अब मैं प्रिंट करना चाहती हूँ स्टैटिक. एक बार स्टैटिक प्रिंट करें, डॉलर num1 ले ले, मतलब ये वैल्यू, और ई को नॉन स्टैटिक प्रिंट करें जिसमें वो ले ले डॉलर num2 इंक्रीमेंट के बाद, और न्यू लाइन पे ये प्रिंट करें. अब पहला फंक्शन कॉल हो जिसमें हो स्टैटिक अंडरस्कोर वेरिएबल, सेकंड फंक्शन कॉल हो और फिर वो लिख कर है स्टैटिक अंडरस्कोर var. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट में पहले तो वो ले लेगा स्टैटिक आपका 4 ले लेगा, 3+1 दैट इज अ 4, क्योंकि मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ स्टैटिक वेरिएबल पर, इस पे डॉलर num1 पर. दूसरा मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ नॉन स्टैटिक वेरिएबल पर, दैट इज अ num2 प्लस प्लस. तो पहले में तो उसने स्टैटिक 4 प्रिंट कर दिया क्योंकि ये मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ यहाँ पे स्टैटिक num1 स्टैटिक 4. फिर दूसरे में कराना चाह रही हूँ मैं प्रिंट नॉन स्टैटिक num2, दैट इज अ ये प्रिंट होगा जो उसमें 6+1 दैट इज 7. फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो फर्स्ट फंक्शन में तो उसने स्टैटिक में क्लियर कर दिया, लेकिन जब मैंने सेकंड फंक्शन कर रही हूँ तो सेम प्रिंट होगा, लेकिन इसी को वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा. दैट इज 4+1 5 और 7+1 हो जाएगा आपका, हियर इट विल बी द 8 आएगा. तो कहने का मतलब ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल की बात आती है, ये हमारा है. सो that's all about our today's about the variable scope. So thank you.